A very good morning to all of you. ASM Public School welcomes you in today's English class. Students, I am Maninder, going to teach you English Grammar, Chapter 3rd, Transformation of Sentences. So open your English Grammar book, page number 9, and let's start. Transformation of sentences. Transformation means change, to change. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि कैसे हम सेंटेंसेस को वन काइंड से अनदर काइंड में चेंज कर सकते हैं. अ सेंटेंस कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन काइंड टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज देम विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग्स चेंज किए बिना चेंज कैसे करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू डिक्लेरेटिव. An exclamatory sentence can be changed into a declarative. एक exclamatory sentence को declarative sentence में हम change कर सकते हैं and vice versa कि और उसको same change कर सकते हैं without any meaning change. For example, what an amazing scenery it is. Exclamatory है ये. It will be changed into declarative like it is an amazing scenery. Second one, how beautiful she is. Exclamatory. She is very beautiful. Declarative. Understand? The last word, subject and the verb comes on the first and it becomes the declarative sentence. Second, from declarative to interrogative. From declarative sentences to interrogative sentences. Declarative sentences can be changed into interrogative sentences and vice versa. Without changing meaning, we can change them in interrogative sentence. Like, a declarative sentence can be changed into an interrogative sentence by putting the verb before the subject. For example, she is very kind. Declarative. Is she very kind? Interrogative. I'm in class 5. Declarative. Am I in class 5? Interrogative. Second, when a declarative sentence has two verbs, it can be changed into an interrogative sentence by putting the subject between the two verbs. अगर two verbs दी हो like a main verb and a helping verb, तो क्या होगा, सब्जेक्ट को हम मिडिल में ले आएंगे and it can be changed into interrogative. She has finished. Has she finished? She was going. Was she going? You are going to the fair. Are you going to the fair? I will meet you at the mall. Will I meet you at the mall? Understand? Try more sentences. Now come to next page. When a declarative sentence contains the adverb never, it becomes ever in the interrogative sentence. For example, I never asked you to डू इट. डिक्लेरेटिव में अगर नेवर दिया हो तो क्या आता है, एवर आ जाता है. और अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में वर्ब के पीछे ईडी दिया हो या सेकेंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब दी हो तो हम क्या करते हैं, पहले डिड लगाते हैं क्वेश्चन बनाने से पहले एंड देन मेन फॉर्म, जो मेन वर्ब होती है उसकी सिंपल फॉर्म लिखते हैं, पास्ट फॉर्म या और कोई फॉर्म नहीं लिखते. When a declarative sentence contains the adverb no, it becomes any in the interrogative sentence. अगर no दिया हो डिक्लेरेटिव में तो जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, any में चेंज करते हैं. A declarative sentence can be changed into an interrogative sentence by adding short questions at the end. Many times बात करते टाइम हम क्या करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन एंड में ऐड कर देते हैं. अपनी बात के, अपने स्टेटमेंट के एंड में एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं लाइक शी इज ब्यूटीफुल, इजंट शी, या फिर ही इज लेट, इजंट ही. तो ये जो क्वेश्चन ऐड हम करते हैं ना एंड में, उसको बोलते हैं टैग क्वेश्चंस. दीज शॉर्ट क्वेश्चंस दैट वी पुट एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड टैग क्वेश्चन. टैग क्वेश्चंस आर मेड बाय यूजिंग अ हेल्पिंग वर्ब. टैग क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यूजिंग अ हेल्पिंग वर्ब एंड अ सब्जेक्ट प्रोनाउन. जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रोनाउन यूज किया जाता है. सेम सब्जेक्ट हम यूज नहीं करते, हमेशा प्रोनाउन फॉर्म यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. लाइक दिस, इजंट
शी। अगर यहाँ होता राधा इज ब्यूटीफुल तो भी यहाँ क्या आता, इजंट शी। राधा के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, शी। अंडरस्टैंड। यूजुअली इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अंडरस्टैंड। नाउ एग्जाम्पल्स, आई एम अ स्टूडेंट, आरंट आई। यू आर अ स्टूडेंट, aren't you? She is a student, isn't she? She was coming, wasn't she? He lives in Paris, doesn't he? They live in Paris, don't they? He was happy, wasn't he? They were happy, weren't they? ऐसे ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको रीड करने हैं। डू प्रैक्टिस ऑफ दिस ऑल्सो। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। On next page, book exercise A is given. Complete the statements by adding suitable question tags. Statements दिए हुए हैं, इनको आपने complete करने हैं। कैसे complete करने हैं, question tag add करके। He can drive, तो क्या आ जाएगा, can't he? You were late, weren't you? He invited her, didn't he? Fourth, you will do yourself. Fifth, you won't work. Will के लिए क्या आता है बच्चे, want, तो विल वॉन्ट। दे वॉन्ट वर्क, तो क्या आ जाएगा, विल दे। अदर्स यू हैव टू डू योर सेल्फ। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज। ऑन नेक्स्ट पेज here are some points to remember. If a sentence contains negative words, अगर सेंटेंस में कुछ नेगेटिव वर्ड्स दिए हों, कौन कौन से, नेवर, सेल्डम, हार्डली एवर, वी जनरली यूज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स। अगर नेवर, सेल्डम या हार्डली एवर दिए हों तो क्वेश्चन टैग कौन से यूज होते हैं, पॉजिटिव। लाइक शी नेवर कम्स लेट, डज शी, वह कभी भी लेट नहीं आती, तो फिर वो क्या बोलता है, क्या आती है। नेक्स्ट, वी डोंट कीप अवर कंट्री क्लीन, डोंट है तो उसका क्या आ जाएगा, डू वी। इफ हार्डली एवर रेन्स इन अ डेजर्ट, डज इट। If the main subject is everybody, everyone, somebody, someone, nobody or no one, then we use the subject they in the question tag. अगर ये वाले subjects दिए हों तो question tag में हम कौन सा subject use करते हैं, they. Like examples, everybody loves her, don't they? No one objected, did they? Everyone agreed, didn't they? नेक्स्ट इज फ्रॉम इम्पेरेटिव टू इंटेरोगेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कैसे करते हैं। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस और वाइस वर्सा। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं और इंटेरोगेटिव को इम्पेरेटिव में। कैसे, स्टॉप टॉकिंग इम्पेरेटिव है, विल यू स्टॉप टॉकिंग इंटेरोगेटिव हो जाएगा। विल यू स्टॉप टॉकिंग जो है, अगर हम इसको रिमूव कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव में को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे यू, एंड देन विल को हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे। अंडरस्टैंड। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या है, इम्पेरेटिव है। विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज, ये क्या है, इंटेरोगेटिव। बुक एक्सरसाइज बी, डू एज इंस्ट्रक्टेड। आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इनको सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए, सो यू हैव टू डू इट। लाइक फर्स्ट इज कम हेयर, इसको से अगर हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, विल यू कम हेयर। नेक्स्ट, इट इज अ ग्रेट विक्ट्री, इसको भी किस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, इज इट अ ग्रेट विक्ट्री। थर्ड, स्टॉप टॉकिंग, ऊपर भी किया था हमने स्टॉप टॉकिंग, तो क्या आ गया था, विल यू स्टॉप टॉकिंग। फोर्थ, व्हाट अ ग्रेट प्लेजर, चेंज टू डिक्लेरेटिव, तो ये कैसे डिक्लेरेटिव में चेंज होगा, इट इज अ ग्रेट प्लेजर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंसेस यू विल डू योर सेल्फ, प्रैक्टिस योर सेल्फ। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। Next point is from affirmative to
नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस एंड नेगेटिव दैट कंटेन नॉट। तो एन एफर्मेटिव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस एंड वाइस वर्सा, कि हम एफर्मेटिव को नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव को एफर्मेटिव में। कैसे चेंज करते हैं? फर्स्ट इज विद अ चेंज इन मीनिंग। एक तो होता है मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। एफर्मेटिव का जब नेगेटिव होगा तो मीनिंग तो चेंज होगा ही ना एक बार। अगर हम डायरेक्ट नॉट लगा देंगे, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, तो मीनिंग चेंज हो गया ना बिल्कुल। लाइक अवर फर्स्ट एग्जाम्पल, माई सिस्टर लिव्स इन भटिंडा। माई सिस्टर लिव्स इन भटिंडा, बट अगर हम इसको चेंज करेंगे, नॉट लगाएंगे, माई सिस्टर डज नॉट लिव इन भटिंडा, तो सेंटेंस तो बिल्कुल चेंज हो गया। इट्स कंप्लीटली चेंज्ड ना, इट्स मीनिंग इज चेंज्ड। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, एफर्मेटिव है। आई हैव नो फ्रेंड्स, नेगेटिव, इट्स मीनिंग ऑल्सो चेंज्ड। इट्स द अपोजिट कंडीशन ना। सेकेंड इज विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। अगर हमें विदाउट चेंजिंग द मीनिंग एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने हो तो हमें क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग नॉट प्लस प्रीफिक्स। हमें क्या करना है, जो दी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें हमें प्रीफिक्स जोड़ के उसका ऑपोजिट बनाना है और फिर नॉट लगाना है। लाइक ही इज ऑनेस्ट, तो इसका क्या दे दिया? ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। प्रीफिक्स पहले लगने वाले, ऑनेस्ट के पहले डिस लग गया तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हुआ नॉट लगाने के बाद में। शी इज कंफर्टेबल, शी इज नॉट अनकंफर्टेबल। नाउ नेक्स्ट इज फॉर वर्ड्स विद सफिक्स। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें सफिक्स ऐड करना पड़ता है। इट वॉज थॉटलेस ऑफ यू टू से सो, तो इसका क्या हो जाएगा? इट वॉज नॉट थॉटफुल, सफिक्स ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट, शी इज क्लूलेस, तो शी हैज नो क्लू। थर्ड, यूजिंग नॉट प्लस ऑपोजिट वर्ड्स, जहां हमें सफिक्स प्रीफिक्स लगाए बिना डायरेक्ट ऑपोजिट वर्ड्स यूज करने हो। लाइक ही इज अ गुड बॉय, ही इज नॉट अ बैड बॉय। दिस ड्रेस इज चीप, दिस ड्रेस इज नॉट एक्सपेंसिव। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। यूजिंग नो वन, नथिंग, नोवेयर, तो हम क्या करते हैं? एवरीवन दिया हो या कोई थिंग दी हो, उसके लिए हमें नो वन, नथिंग, नोवेयर यूज करके भी एफर्मेटिव का नेगेटिव बना सकते हैं। लाइक एवरीवन फाउंड द प्ले इंटरेस्टिंग, तो क्या आ जाएगा? नो वन फाउंड द प्ले अनइंटरेस्टिंग। दिस इज द ओनली थिंग आई वॉन्ट नथिंग बट दिस थिंग। चेंजिंग ऑलवेज टू नेवर, ऑलवेज को हम नेवर में चेंज करके भी नेगेटिव बना सकते हैं। लाइक देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर यू टू मेक अमेंड्स, इट इज नेवर टू लेट फॉर यू टू मेक अमेंड्स। नेक्स्ट इज चेंजिंग टू सो दैट, टू को सो दैट में चेंज करके, लाइक द क्रैश विक्टिम वॉज टू वीक टू वॉक, तो इसका क्या हो जाएगा? द क्रैश विक्टिम वॉज सो वीक दैट ही could not walk. Understand? Now come to book exercise C. Change these sentences into negative sentences without changing their meaning. Meaning change करे बिना इन sentences को क्या करना है आपने? Change करना है negative में. Like first sentence is he is honest, he is not dishonest. Iron is a heavy metal. Heavy का opposite light. आयरन इज नॉट अ लाइट मेटल. ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, तो ऑलवेज को चेंज करना है नेवर में. ही इज नेवर लेट. एवरीवन लाइक द लेक्चर, एवरीवन को नो वन में. नो वन डिसलाइक द लेक्चर. In the same method, you have to change the remaining sentences. That's all for today's class. Do your studies very well. Complete your work on time. Bye bye. Have a nice day. Stay home. Stay safe.